Hi everyone. Let's go with the next program to check whether the given number is pronic number or not. Okay. Pronic number means what? What is the meaning of pronic number? Let's take the example. Here you can see pronic number is nothing but if I multiply like 2 multiplied by 3 is equals to 6. Okay. We need to check whether this 6 is a pronic number or not. That means what? Multiplication of two consecutive number is nothing but the pronic number. So here you can see 2 is my first number. Immediately the next number is what? 3. That means what? 2 and 3 are the consecutive number. Okay. And the multiplication of this is this. That means 6. Okay. Then we say what? 6 is the pronic number. Okay. Likewise, if I say 6 multiplied by 7 is equals to 42. Okay. That means what? 6 sevens are 42. 6 and 7 are the consecutive numbers. That's why we say what? 42 is the pronic number. Likewise, if I say, I say 4 multiplied by 5 is equals to, ठीक है, 30. Right? Okay. So basically here 20. Basically here we say 4 and 5 are the consecutive number. That's why here we say what? 20 is the pronic number. The multiplication of the consecutive number, the whatever the answer is, that particular number is the consecutive number. So here basically the logic is what? You can see for this first row you can see the logic is what? If I take number as if I take I as 2, then the next number immediately is what? This multiplied by 2 plus 1, right? So this is how we are going to get the next consecutive number. So basically how we are going to apply the logic over here? Definitely we are going to take the for loop, right? Because एक नंबर चेक करके ही हमें स्टॉप नहीं होना है. जब तक हमें मिलता नहीं है टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर हमें जब तक मिलता नहीं है तब तक हमें क्या करना है? लूप को चलाना है. दैट मीन्स वॉट? इफ आई टेक 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए? आई मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस 1. तो आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, आई multiplied by I plus 1, right? This is how I am going to write, and I need to check it is equal to the number which is entered by the user. Suppose the number entered by the user is 6. If this is the case, like I multiplied by I plus 1 is equal to 6, then we say what? This is the pronic number. अगर नहीं है तो this is not the pronic number, right? तो basically हम लोग इसको पूरा कोड खेलेंगे हम लोग एक काउंटर पे, ठीक है? काउंटर वेरिएबल लेंगे, उसकी वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करेंगे स्टार्टिंग में. वो वैल्यू अगर चेंज होती है देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज ए pronic नंबर. लेट्स सी द कोड फॉर दिस. ओके, तो हियर दिस इज व्हाट द कोड फॉर द pronic नंबर. आई हैव टेकन import java.util.start. देन नेक्स्ट इज पब्लिक क्लास. दिस इज माई क्लास नेम. ओके, उसके बाद में मैंने लिया है एक मेन फंक्शन, that means method public static void main. ब्रैकेट में आई हैव रिटन स्ट्रिंग एंड आर्क्स. उसके बाद मैंने लिया है int n i counter is equal to 0. see I have initialized, I have taken 3 variables of type integer. इसमें मैंने काउंटर वेरिएबल लिया है. बेसिकली इसका वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किया है 0 से, ठीक है? तो बेसिकली पूरा जो ये pronic नंबर है हम लोग ये काउंटर पे खेलेंगे. अगर काउंटर की वैल्यू चेंज होती है लाइक ट्रू एंड फॉल्स, अभी फिलहाल में फॉल्स है, अगर वो ट्रू हो गई दैट मीन्स व्हाट? हमने जो लॉजिक अप्लाई किया है वो करेक्ट है एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द pronic नंबर, राइट? तो यहाँ पे देखो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है? हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का, दैट इज एस सी. उसके बाद में हम लोग system.out.println से क्या बोल रहे हैं? यूजर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहे हैं एंटर द नंबर. दिस इज व्हाट यूजर कैन रीड, दैट ही नीड्स टू एंटर द नंबर. With the help of this line we are going to take the value, right? Like user input कर रहा है 6, sc.nextend since it is the integer value. Okay, that's why user ने अगर 6 डाला तो 6 इनिशियलाइज हो जाएगा आपके वेरिएबल n को.
फिर हम लोग ने एक लूप चलाया बिकॉज वी नीड टू आइट्रेट, ठीक है, लूप आइट्रेट करना है हमें, दैट्स व्हाई वी हैव मेड यूज ऑफ फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन। कहाँ तक चलाना है, जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वहाँ तक ही हमें चलाना है, राइट। देन आई प्लस प्लस टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखो कंडीशन क्या लगाई, व्हाट इज द कंडीशन ओवर, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, आई की वैल्यू है यहाँ से लेगा वो जो भी है, ठीक है, उसके बाद में आई की वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे। तो अगर आई 1 है आपका तो ये वैल्यू हो जाएंगी 2, आई 1 है तो ये वैल्यू हो जाएंगी 2, और वो कंपेयर करेगा जो यूज़र की वैल्यू, जो यूज़र ने एंटर किया है वैल्यू 6 एंटर किया है तो देखेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6 है या नहीं है। अगर नहीं है तो डायरेक्टली वो लूप के बाहर आएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंटर इन दिस लूप। फिर वो दूसरा आइट्रेशन करेगा, फिर आई की वैल्यू को बढ़ा देगा, आई इज इक्वल टू 2 करेगा, फिर देखेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 दैट इज 3 इक्वल टू 6 है या नहीं है। तो वी नो दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6, देन इट इज गोइंग टू एंटर, यहाँ पे एंटर हो जाएगा वो। यहाँ पे एंटर होने के बाद में वो क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू 0 से हटा के 1 कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं, जैसे ही हमारी सेटिस्फाइड कंडीशन एनकाउंटर हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक लग जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, हमें इसके बाद के जो भी आइट्रेशन से अब उसको परफॉर्म नहीं करना है, हमारा टारगेट हमें मिल गया है, राइट। देन ये फॉर लूप भी खत्म हो गया फिर यहाँ पे, राइट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए इफ लूप में हमारे ये। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारा काउंटर पूरा एग्जीक्यूशन के बाद, ये पूरा लूप एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हमारा काउंटर चेंज हुआ है 1 को, क्योंकि हमने जब उसको इनिशियलाइज किया था तो काउंटर की वैल्यू क्या थी, 0 थी, अब वो काउंटर चेंज हो गया, अगर हुआ है देन डेफिनेटली द नंबर इज व्हाट, ए प्रॉनिक नंबर। अगर वो काउंटर एज इट इज 0 है, ठीक है, काउंटर एज इट इज 0 है, देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज नॉट ए प्रॉनिक नंबर। तो इतना सा ही लॉजिक है, यही लॉजिक है यहाँ पे। हमें ये देखना है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर गिवन बाय द यूजर। इफ इट इज ट्रू देन द काउंटर वैल्यू इज गोइंग टू चेंज, ओके। अगर ये चेंज होता है देन वी से व्हाट, द entered number by the user is a pronic number, else the number is not a pronic number. This is what the logic behind the pronic number.